Good morning, class 7 students. How are you all doing today? Well, students, our body need energy to do work, and from where we get this energy? We get this energy from the food that we eat. But the food we eat cannot be used by our body in that way only. What it needs to do, the food has to be broken down into smaller pieces. The food that we eat is a complex one, and it needs to be broken down into the simple and soluble form. Then only it can be utilized by our body to do work. Once the food is broken down into the smaller pieces, and what happened, our cell, they absorb that food, and the energy is produced in individual cells. So this process of breaking down of complex food into the simpler one is known as the digestion, and today we will be learning this topic only. So what is our topic of the day? So today we are learning the human digestive system. Digestion, it comes under this system, human digestive system. And what are the organs which are involved in a human digestive system? The name of the organs are, first is the food tube or alimentary canal. This alimentary canal, it consists of buccal cavity, food pipe, esophagus. We call either called food pipe, or it is also known as esophagus. The third one is stomach. Fourth is small intestine, the fifth is large intestine, the next is rectum, and the last one is anus. So this food tube, or popularly known as the alimentary canal, it consists of all these respective organs. And if we look at the length of the alimentary canal, it is around 9 meters. So this is the total length of the alimentary canal or the food tube, and it consists all these respective organs. So here in the diagram you can see your alimentary canal. It starts from here and it runs towards the anus. So this is the total length of your alimentary canal, and it includes all these organs which have been mentioned over here on the board. So one by one. Well, students, the first step in the human digestive system is ingestion of food. Well, हम food का ingestion करते हैं through our mouth. How? With the help of our hand, and usually mostly we use our right hand to put food in our mouth. Now our mouth, it has teeth, tongue and salivary glands. So teeth, you have already learned everything about the teeth. There are 4 types of teeth: the front teeth, incisors, the canines, the premolars and molars. Now what is the function of incisors? They help in biting of food. Then comes the canine, they help in tearing of the food. Then premolars and molars, what they do, they grind and they chew the food properly. Once this is done, the salivary gland, what the function of the salivary gland? They used to secrete saliva. Once the saliva is mixed with the food, it is easy for us to swallow that food. Okay, so here in the diagram you can see, once you have ingested the food, or when you have taken the food with the help of your mouth, what happened? You have teeth in this part, in your upper and lower jaw, and what happened? These are the salivary glands. What their function is? They used to secrete saliva. Saliva is a sort of liquid. जब liquid food के साथ mix होता है तो वो easily grind हो जाता है. Like जैसे हम मिक्सी में whenever we have to churn, whenever we have to make paste of anything, या आप चटनी बनाते हैं या मसाला बनाते हैं, what you used to do, you need to add some water into it. उससे क्या होता है, उसका जो मिक्सिंग पार्ट होता है वो इजीली हो जाता है. द सेम वे जब हम खाना खाते हैं तो जो सलाइवरी ग्लैंड्स होती है, व्हाट इज देयर फंक्शन? वो सलाइवा सीक्रेट करती हैं, वो लिक्विड सीक्रेट करती हैं. उससे क्या है, हमारा जो फूड है वो प्रॉपरली मिक्सअप हो जाता है, इजीली चर्न हो जाता है, उसका अच्छा सा एक पेस्ट जैसा बन जाता है. और जब ये ऐसा हो जाता है तो क्या होता है कि हम उसको इजीली स्वेलो कर सकते हैं. नाउ द रोल ऑफ टंग. टंग भी है माउथ के अंदर. उसका फंक्शन क्या है? टंग जो है वो एक फ्लैशी मस्कुलर ऑर्गन है, हमारी बक्कल कैविटी में अटैच्ड है, और एक अच्छा सा फ्लैशी मस्कुलर ऑर्गन है. वो क्या हेल्प कर रहा है? फर्स्ट जो हेल्प है वो है मिक्सिंग सलाइवा एंड फूड. ठीक है, जैसे एक स्पून है, उस स्पून की जैसे वो क्या कर रहा है, फूड और सलाइवा को मिक्सअप करने का काम कर रहा है. सेकेंड इज स्वेलोइंग फूड.
जब पूरा फूड जो है अच्छे से प्रॉपरली हम च्यू कर लेते हैं, तब क्या होता है, उसको स्वेलो करने में कौन हेल्प करता है? टंग। टंग खाने को पीछे की तरफ लेके जाती है और फिर हम उसे इजीली स्वेलो कर लेते हैं। थर्ड, इट टेल्स द टेस्ट। खाना कैसा है, खाना मीठा है, इट्स स्वीट इन टेस्ट, इट्स सॉर इन टेस्ट, इट्स बिटर इन टेस्ट, ये हमें कैसे पता चलता है? विद द हेल्प ऑफ टंग। एंड टंग के ऊपर भी क्या है? टेस्ट बर्ड्स हैं। ये टेस्ट बर्ड्स हमारे टंग के ऊपर लोकेटेड होती हैं। ये हमें डिटेक्ट कराती हैं कि खाना कैसा है, बिटर है, सॉर है या फिर स्वीट है। द नेक्स्ट इज इट हेल्प्स इन स्पीकिंग। टंग जो है वो हमको बोलने में भी क्या करती है? मदद करती है। तो ये जो है इंजेक्शन ऑफ फूड जो है, इसमें हमने अच्छे से देख लिया। उसमें टीथ है, माउथ के थ्रू हो रहा है, माउथ में टीथ है, टंग है एंड सलाइवरी ग्लैंड से। टंग के फंक्शन जो है वो हमने अच्छे से यहाँ पर समझ लिए हैं। तो अब हम बढ़ते हैं हमारे आगे के टॉपिक की। वेल स्टूडेंट्स, नाउ वी आर लर्निंग डाइजेशन ऑफ फूड। हम डाइजेशन ऑफ फूड समझेंगे इन ईच एंड एवरी ऑर्गन ऑफ आर एलिमेंट्री कैनाल। जो हमारी एलिमेंट्री कैनाल है, जिसके बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं, उसके जितने भी ऑर्गन्स हैं उनमें डाइजेशन कैसे हो रहा है, तो स्टेप बाय स्टेप हम वो समझेंगे। फर्स्ट है इन बकल कैविटी। बकल कैविटी में क्या हो रहा है? फूड इज च्यूड। फूड जो है उसको विद द हेल्प ऑफ टीथ हम अच्छे से च्यू कर रहे हैं, ठीक है। इंसीजर्स, कैनाइन, प्री मोलर्स, मोलर सबकी हेल्प से हमने फूड को अच्छे से च्यू किया। नाउ व्हाट इज हैपनिंग? वहां एक ग्लैंड है, सलाइवरी ग्लैंड। सलाइवरी ग्लैंड क्या कर रही है? सलाइवा सीक्रेट कर रही है। सलाइवा जो है इट इज अ काइंड ऑफ डाइजेस्टिव जूस। ये जो डाइजेस्टिव जूस है, जब ये मिक्स हो जाता है, मीन्स सलाइवा मिक्स हो जाता है इस फूड के साथ, तब क्या हो रहा होता है? फूड जो है वो स्लीपरी बन जाता है। When food mix with the saliva, इन दोनों का जब कॉम्बिनेशन होता है तो क्या होता है? फूड टर्न स्लीपरी। जब फूड स्लीपरी हो जाता है तो क्या होता है? वो इजीली स्वेलो कर लिया जाता है, ठीक है। स्वेलो मीन्स अभी हम यहाँ पर हैं, दिस इज आवर बकल कैविटी। यहाँ से हमने फूड का इंटेक किया, यहाँ पे हमारी टीथ की हेल्प से हमने अच्छे से फूड को च्यू किया। ये सलाइवरी ग्लैंड्स हैं, ये क्या करेंगे? अपना सीक्रेशन डालेंगे माउथ के अंदर, जो कि सलाइवा होता है और वो एक टाइप का डाइजेस्टिव जूस होता है। जब ये ऐड हो जाता है फूड के साथ तो फूड जो है वो स्लिपरी बन जाता है। जब फूड स्लिपरी बन जाता है तो टंग क्या करती है? उसको पुश करती है पीछे की तरफ और वो इजीली स्वेलो हो जाता है और वो एंटर कर जाता है हमारे ईसोफेगस वाले पार्ट में। नाउ वंस द फूड इज इजीली स्वेलो, यहाँ पर एक चीज और हो रही है, जो हमारे फूड के अंदर, जो भी फूड हमने इंटेक किया है उसके अंदर जो स्टार्च वाला पार्ट होता है, मीन्स हमने देखा कार्बोहाइड्रेट, स्टार्च इज अ काइंड ऑफ कार्बोहाइड्रेट। तो जो कार्बोहाइड्रेट है हमारे फूड के अंदर, वो उसका क्या हो रहा है? ये सलाइवा जो एक डाइजेस्टिव जूस है वो उस स्टार्च को आइडेंटिफाई करता है और उसको ब्रेक डाउन करता है इन द शुगर माल्टोज। तो यहाँ पर जो है स्टार्च का डाइजेशन हो चुका है, स्टार्च कन्वर्ट हो चुका है इनटू द शुगर माल्टोज और ये उसके बाद में स्वेलो कर लिया जाता है और फिर यहाँ से जो फूड है वो एंटर हो जाता है नेक्स्ट ऑर्गन ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल, जो कि है ईसोफेगस। फूड जो है वो बकल कैविटी से नाउ एंटर हो चुका है ईसोफेगस के अंदर। ईसोफेगस क्या है? ईसोफेगस एक होलो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है जो कि मसल्स से बनी हुई है। इस ईसोफेगस में क्या हो रहा है? ये एक होलो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, मसल्स से बनी हुई है। इसकी अगर हम लेंथ की बात करें तो अप्रोक्सीमेटली इट इज अराउंड 25 सेंटीमीटर इन लेंथ। एंड नाउ व्हाट इज हैपनिंग? ये जो मसल से बनी हुई है इसके अंदर क्या हो रहा है? मूवमेंट हो रहा है इसके मस्कुलर वॉल का, जिसकी वजह से क्या हो रहा है? जो फूड है वो पुश किया जा रहा है डाउनवर्ड। यहाँ पर आने के बाद आप यहाँ देख सकते हैं, दिस इज अ होलो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। ईसोफेगस जो है ये यहाँ से यहाँ जो शो किया जा रहा है एक होलो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है। इसकी लेंथ यहाँ दिखा रखी है। ये मसल से बनी हुई है। जब फूड यहाँ से एंटर करके आ रहा होता है तो इसकी मसल्स में मस्कुलर मूवमेंट होता है जो कि पुश करता है फूड को डाउनवर्ड की तरफ। एंड डाउनवर्ड में ये कहाँ आएगा? फूड लास्ट में स्टमक के अंदर आ जाएगा। अब स्टमक में क्या हो रहा है वो हम अब समझेंगे कि स्टूडेंट्स, जब फूड स्टमक के अंदर आ जाता है तो हम स्टमक के बारे में स्टडी करेंगे। स्टमक क्या है? ये एक जे शेप मस्कुलर स्ट्रक्चर है। ये यू कैन सी दिस पार्ट इज योर स्टमक पार्ट। एंड स्टमक कैसा है? जे शेप का है, जैसे हमारा अल्फाबेट होता है जे, दैट लाइक दैट शेप ओनली। नाउ इट इज द वाइडेस्ट पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। हमारी एलिमेंट्री कैनाल का सबसे वाइडेस्ट पार्ट है, मीन सबसे चौड़ा पार्ट ऑफ आर एलिमेंट्री कैनाल।
इसकी जो लाइनिंग होती है, ये जो इसकी इनर लाइनिंग है, पूरे सैक एक बैग लेग स्ट्रक्चर है, इस बैग लेग स्ट्रक्चर की जो इनर लाइनिंग है वो क्या कर रही है, वो उसके सब तरफ गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होती हैं। यहाँ पर हम देखेंगे क्या है, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स हैं। ये जो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स हैं ये क्या करती हैं, डाइजेस्टिव जो जूस है उसे सीक्रेट करने का काम करती हैं। तो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स इन द लाइनिंग ऑफ स्टमक दे सीक्रेट डाइजेस्टिव जूसेस। तो इन्होंने डाइजेस्टिव जूस जो है वो सीक्रेट किया। ये जो डाइजेस्टिव जूस है इसके अंदर क्या क्या है, this digestive juice has mucus, it has hydrochloric acid and it has digestive enzymes. Now mucus क्या है, म्यूकस जो है वो प्रोटेक्ट करेगा स्टमक की लाइनिंग को फ्रॉम एंजाइम एंड एसिड एक्शन। अब यहाँ पे ये जो डाइजेस्टिव जूस जो कलेक्ट हो रहा है वो स्टमक को किसी तरीके का कोई नुकसान ना पहुंचा सके, तो उससे प्रोटेक्ट करने के लिए क्या है, म्यूकस है। म्यूकस क्या कर रहा है, वो स्टमक की जो लाइनिंग है उसे प्रोटेक्ट कर रहा है एंजाइम और एसिड के एक्शन से, कहीं स्टमक का खुद का डाइजेशन ना हो जाए, इसलिए उसको प्रिवेंट करने के लिए, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए म्यूकस है। सेकेंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, इसका सीक्रेशन हो रहा है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड का क्या फंक्शन है, ये किल करेगा बैक्टीरिया को। जब हम फूड इनगल्फ कर रहे होते हैं, हम फूड ले रहे होते हैं, उस दौरान क्या होता है, बैक्टीरिया भी फूड के साथ एंटर हो जाते हैं, उन बैक्टीरिया को किल करने का काम करता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इट मेक्स द फूड एसिडिक। ये जब मिक्स हो जाता है फूड के साथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो जो फूड है वो कैसा हो जाता है, इट टर्न्स इनटू एसिडिक। जब वो फूड एसिडिक होता है तो क्या हो रहा है, जितने भी एंजाइम्स वगैरह हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम्स जो है वो क्या है, इसके ऊपर प्रॉपरली अपना फंक्शन कैरी आउट कर सकती हैं, इस फूड को वो अच्छे से प्रॉपरली डाइजेस्ट कर सकती हैं। स्टमक के अंदर अगर हम बात करें फूड की ड्यूरेशन की, कि फूड कितनी देर तक स्टमक में रहता है, तो इट्स अराउंड 2 to 4 आवर्स पीरियड है, जिसके दौरान फूड क्या है, हमारे स्टमक के अंदर है। स्टमक के बाद जो हमारा फूड है वो एंटर करेगा हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन वाले पार्ट में, दिस इज द स्मॉल इंटेस्टाइन पार्ट। स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद जो फूड है वो लार्ज इंटेस्टाइन में एंट्री करेगा, और लार्ज इंटेस्टाइन के बाद में जो अनवांटेड फूड है या जो वेस्ट मटेरियल है वो हमारी बॉडी से एलिमिनेट कर दिया जाएगा। तो आई होप स्टूडेंट्स यहाँ तक का टॉपिक जो है आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, हम जो स्मॉल इंटेस्टाइन वाला पार्ट है, लार्ज इंटेस्टाइन वाला पार्ट है, हम नेक्स्ट क्लास में समझेंगे इसको अच्छे से। अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आती है, सोशल ड्यूटीज आती हैं, तो आपको क्या करना है, यू हैव टू बी एट होम, यू नीड टू बी सेफ, यू नीड टू ईट हेल्दी फूड्स, यू नीड टू ड्रिंक लॉट्स ऑफ वाटर, यू नीड टू सैनिटाइज योर हैंड्स, you need to wash your hands frequently with soap for at least 20 seconds, and you need to maintain social distancing. So be at home, be healthy and be safe. Thank you so much.